So very good morning to all. So today we are going to start with the cost classification, a very important part. I will be requesting everyone today, whatever I'm writing on the screen, please note down because this will make your job very easy to understand the cost classification part. Let us start now. So we are going to start with classification of cost, your cost classification. Classification of cost. So here the cost is classified. Here the cost is classified in various forms. Time classification on the basis of time. On the basis of time. Basis of time. So first classification we are going to discuss on the basis of time. Then on the basis of behavior. On the basis of behavior. Then on the basis of element. On the basis of element. On the basis of controllability. I don't know what is given in notes, but we will discuss everything in detail. Please make sure that normality on the basis of functions, and others. So this is a cost classification under various heads. Sir, agar if I talk about classification on the basis of time, so here we have historical cost. Second one is current cost. And third one is predetermined cost. Predetermined cost. Predetermined cost. On the basis of behavior, fixed cost. On the basis of behavior, fixed cost. Second, variable cost. And third, semi-variable cost. Semi-variable cost. Semi-variable cost. On the basis of element. On the basis of element. On the basis of element, material, labor, and expenses. On the basis of controllability, controllable and non-controllable cost. Controllable cost and non-controllable cost. Controllable cost. Non-controllable cost. On the basis of normality, functions लिख लो. Functions में फैक्ट्री ओवरहेड में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं FOH. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. selling and distribution overhead. Then research and development overhead, जिसको हम लोग R&D overhead भी बोल सकते हैं. Overheads. On the basis of normality, normal cost. Second one is abnormal cost. Normal cost, abnormal cost. Normal cost, abnormal cost, and others में that we will light later on. इसमें बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट है,
मैं लिख देता हूँ 6 to 7 types. Every student should know about all these costs properly. Please ध्यान देना. Don't skip this part because this is an important theory, especially from cost point of view. Implicit cost versus explicit cost. Versus implicit cost. Implicit cost, product cost, opportunity cost, implicit versus explicit cost, and differential cost. Differential cost, sunk cost, conversion cost, and last one is marginal cost. और कुछ पार्ट याद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक नोट डाउन कर लो. Today we will be completing most probably classification on the basis of time, on the basis of behavior. All classifications are very simple. Don't worry, कुछ भी difficult नहीं है. अगर आप उसको रोज स्टेप वाइज पढ़ोगे तो आई होप यू विल बी नोइंग द डिफरेंस ऑफ ऑल दिस कॉस्ट प्रॉपर्ली. ठीक है सर, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. Those students who have not noted down or they are still noting, please note it down later on because I feel discussion is more important because you can copy down this in a later part also. ठीक है. Now सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे classification on the basis of behavior. A very simple part. This part is going to be throughout your graduation. ये कहीं ना कहीं आपको आएगा ही आएगा. ये ध्यान देना. So please, very important, you should know classification on the basis of behavior. So behavior के base पे there are how many costs? There are 3 costs. First is fixed cost, variable cost, and fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. Let us start with fixed cost. Fixed cost. Fixed cost. Second is variable cost. Variable cost. And third one is semi-variable cost. Semi-variable cost. Listen very carefully. Everything is easy. Nothing is difficult. And you will all understand each and everything properly. मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लिख दो. ठीक है. सर फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या है? Fixed costs are those costs. Fixed costs are those costs which remain fixed. Which remain fixed. Most important is irrespective of changes in production oblique sale. So fixed cost वो cost है जो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. भले आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, भले आपका सेल इंक्रीज हो, भले आपका प्रोडक्शन कम हो, भले आपका सेल्स कम हो, वो हमेशा सेम रहेगा. सर कैन यू गिव इज द एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल है. सबसे पहले एग्जाम्पल रेंट, डेप्रीसिएशन, सैलरी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ये ऐसे कॉस्ट है जो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज होने वाले नहीं. आपका प्रोडक्शन 0 भी हो जाएगा ना तो भी ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा. जैसे कि एग्जांपल, सर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, आई एम अ मैन्युफैक्चरर. एग्जांपल बता रहा हूँ सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर. सर मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेंट पे ली. नया बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया.
उसने बोला सर आपसे ना हम 20,000 रुपीज पर मंथ रेंट लेंगे। लिसन वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर 1 मंथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होकर 1 मंथ हो गया, ठीक है, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 मंथ। 1 मंथ हो गया प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन नया यूनिट था इसलिए 1,000 यूनिट। हाउ मच रेंट आई एम गोइंग टू पे? 20,000 रुपीज रेंट आई एम गोइंग टू पे, बरोबर है सर। सेकेंड मंथ में प्रोडक्शन हुआ 5,000 यूनिट्स, रेंट कितना पे करूंगा? 20,000, 20,000। थर्ड मंथ में प्रोडक्शन हुआ, टेक एन एग्जाम्पल 8,000 यूनिट्स, ये इमेजिनरी फिगर बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है 20। अभी मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो सीजनल है, सीजनल, वो सीजन पे बेस करता है, सीजन पे बेस करता है, ठीक है, एग्जाम्पल रेनकोट, ठीक है। फोर्थ मंथ में सीजन ऑफ सीजन था, सर मैंने सिर्फ 500 यूनिट्स बनाया बट स्टिल माय प्रोडक्शन, माय फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज बी 20,000। बात समझा या नहीं समझा? सेम, अभी जैसे कि डेप्रीसिएशन है, सर मैंने एक एसेट परचेज किया 50,000 का, उसके ऊपर मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 12%। मुझे बताओ 12% डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 6,000 रुपीज पर एनम। अगर मैं आपको पूछूं बताओ मेरा डेप्रिसिएशन पर मंथ कितना रहेगा, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करोगे और आप बोलोगे सर एवरी मंथ योर डेप्रिसिएशन विल बी 500, 500, 500, 500, 500। इज इट सो? यस सर। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, भले आपका प्रोडक्शन चेंज हो, भले आपका सेल्स चेंज हो, मतलब आपके प्रोडक्ट बढ़ने से या कम होने से वो कभी चेंज नहीं होती है। मैं आपके एक मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, नोट, अमाउंट विल बी फिक्स्ड, अमाउंट विल बी फिक्स्ड एंड पर यूनिट विल चेंज, विल चेंज। सर ये क्या है? ये क्या है? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब भी आप ई बुक जो आपको प्रोवाइड किया है मैंने, अगर वहां पे आप देखोगे जो नोट्स आपको दिए हुए, वहां पे आप देखोगे ना, ये नॉर्मली आपको वहां पे दिखेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ क्या मेरा अमाउंट एवरी ईयर 20,000 है? यस। 20,000 है? यस। 20,000 है? यस। 20,000 है? यस। तो मैंने वही बोला यहाँ पे, आपका अमाउंट फिक्स रहेगा, पर यूनिट चेंज होगा। अगर मुझे बताओ रेंट पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर, तो मैं बोलूंगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 20 रुपी पर। 20,000 divided by 5, it will be 4 rupees. 20,000 divided by 8, it will be 2.5 rupees. 20,000 divided by 500, it will be 40 rupees. मुझे बताओ क्या रेंट पर यूनिट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, ये ध्यान दो, ठीक है। यस सर। तो सर रेंट क्या है? सर रेंट फिक्स कॉस्ट है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं, भले आपका प्रोडक्शन चेंज हो बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज 100%, ठीक है। यस सर। जस्ट बेटा मैं इसको वापस सेग्रीगेट कर रहा हूँ टू मेक माय जॉब मोर सिंपल एंड फॉर यू ऑल्सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर। बताइए सर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, टेबल एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं, तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे आए? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे आए? ये है वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जीरो, ठीक है। ये ध्यान देना, ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बोलो या सेल्स बोलो, जो भी, और यहाँ पे आएगा कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लिख देता हूँ, कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज माई रेंट? सर माई रेंट इज 20,000 रुपीज। मुझे बताओ आपका प्रोडक्शन 1,000 यूनिट्स हो, आपका प्रोडक्शन 2,000 यूनिट्स हो, आपका प्रोडक्शन 3,000 यूनिट्स हो, आपका प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स हो, आपका प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स हो, सर मेरा कॉस्ट 1,000 पे भी 20,000 रुपीज रहेगा, 2,000 पे भी 20,000 रहेगा, 3,000 पे भी रेंट 20,000 रहेगा, 4,000 पे भी रेंट 20,000 रहेगा, फिफ्थ 5,000 यूनिट्स पे भी 20,000 रहेगा। इसका मतलब सर मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग, ये ध्यान देना। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है बिकॉज इट इज फिक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ
चेंजेस इन प्रोडक्शन और सेल। कल अगर 5,000 से जीरो भी आ जाता है, मान लो 6th मंथ में आपका प्रोडक्शन जीरो है, बट स्टिल यू हैव टू पे रेंट। यू कैन नॉट से कि मेरा प्रोडक्शन नहीं हुआ, लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से बिजनेस बंद था, गवर्नमेंट ने बोला था कि कंपलसरीली आपको बिजनेस बंद रखना है 2 महीने, 2 महीने प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट रेंट तो लगेगा। यस सर, रेंट लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स कॉस्ट। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट फिक्स कॉस्ट? तो मुझे पूछो, फिक्स कॉस्ट के बारे में पूछना है और कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ू। बोलो जल्दी बेटा, एनीबडी? ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूं। सर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अभी जब मैं फिक्स कॉस्ट में डिस्कस कर ही रहा हूं, तो फिक्स कॉस्ट को अगर मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल में डिफाइन करूं, तो फिक्स कॉस्ट वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है। वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है, हाँ बोली, दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट को अगर मैं और डिटेल में जाऊं, बेटा ये नोट्स में आपको शायद ना मिले, शायद ना मिले, बट अगर आप प्रोफेशनल बुक्स देखोगे तो आपको ये मिलेगा। फिक्स कॉस्ट में दो पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कमिटेड, कमिटेड फिक्स कॉस्ट, आपको देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट से नो। और दूसरा है डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। सर इसका मतलब, कमिटेड का मतलब क्या है? कमिटेड का मतलब है अनअवॉइडेबल, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और डिस्क्रिशनरी मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल। This part will not be there in your maybe notes, but this will be only for knowledge I am explaining. फिक्स कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, एक कमिटेड होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और एक अवॉइडेबल भी होता है। बट सर आपने तो बोला प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो आपको तो कंपलसरी देना है, देन हाउ इज इट अवॉइडेबल? तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल। तो आप लोग को वो बातें जितना डिटेल में सोचोगे तो उतना अच्छे से आएगा। इसका मतलब अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब कैन नॉट बी अल्टर, कैन नॉट बी अल्टर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो अमाउंट ऑलरेडी फिक्स हो गया है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा। अगर आप इसको अल्टर करोगे, इफ अल्टर्ड, इफ अल्टर्ड, अगर आप उसको अल्टर करने का कोशिश भी करोगे, तो आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इफेक्ट होगा। विल बी, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेम्पर्ड हो जाएगा, हैम्पर्ड हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, लेट इट बी हैम्पर्ड। बात समझा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सर मैंने, मेरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेंट पे है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने, आपने सोचा नहीं नहीं मैं काम करूंगा, रेंट की प्रीमाइसेस में बिजनेस से नहीं करना है, और आपको प्रीमाइसेस ही नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं मिल रहा है जहां पे चाहिए, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस पे इफेक्ट होगा। आपने सैलरी में, एम्प्लॉय सैलरी कॉस्ट रिडक्शन में एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया, बेटा इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, सैलरी कॉस्ट कट, कॉस्ट कटिंग में काम कौन करेगा? डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सर अनअवॉइडेबल का मतलब, सर हम उसको अल्टर कर सकते हैं, कैन बी अल्टर्ड, can be altered depending upon management decision, depending upon management decisions, depending upon management decisions। जैसे कि सर एग्जांपल बताओ उसमें, सर एग्जांपल मार्केटिंग एक्सपेंसेस। सर जैसे कि आई एम एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस का। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उसमें बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। यू नो कंपनी क्या करता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग में हैवी एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऐसा मैं एजम्पशन लेके चलता हूँ फाइनेंशियल अकाउंट्स में, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक पार्ट दैट यू शुड नो अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंट्स। वहां पे कंपनी क्या करती है, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट एक साथ पे कर देती है, 3 years का एक्सपेंडिचर कंपनी इज पेइंग ऑन अ लमसम बेसिस, राइट? यस। और वो फिक्स प्लेस कंपनी को कंपलसरीली 4 years, 5 years, 10 years के लिए लेना पड़ता है।
दैट इज कॉल्ड एज एन फिक्स कॉस्ट। बट कंपनी को लगता है मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कंपनी वो फिक्स कॉस्ट को नहीं भी करेगा तो भी चलेगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो भी हम उस फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ध्यान दें, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, एज यू ऑल नो कि वी आर पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉय। यस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोविडेंट फंड नहीं देते हैं। इट्स अ कंपल्सरी लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड बेटर हम नहीं ले तो अच्छा है। एक काम करेंगे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी एम्प्लॉय ट्रेनिंग होता है, कंपल्सरीली एम्प्लॉय ट्रेनिंग होता है। हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कभी नहीं भी लेंगे तो भी वो बेटा क्या हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। प्रोविडेंट फंड इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच मेड कंपल्सरी मैंडेटरी एज पर लॉ। वो ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिया। हाँ, यहाँ पे आप कमिटेड फिक्स कॉस्ट में उसको ले सकते हो। बात समझा? सो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स कॉस्ट। सो ये मैंने आपको एडिशनल पार्ट बताया। अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर सब्जेक्ट। बट यू शुड नो कि फिक्स कॉस्ट में दो टाइप होता है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल को आप अल्टर नहीं कर सकते, अगर आप अल्टर करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। और अवॉइडेबल को आप अल्टर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट डिसीजंस। नाउ, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इसकी ऑपोजिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, variable costs are those costs which changes according to changes in production, or sale, production or sale, changes in production or sale, changes in production or sale। ठीक है, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस। सर कैन यू एक्सप्लेन कैसे ये वेरिएबल कॉस्ट? क्यों नहीं, डेफिनेटली। सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने स्टार्ट किया, सेम एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है सर, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, मुझे 1 यूनिट विल गिव्स मी 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा मैं मान के चल। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपने जितना यूनिट खरीदा पूरा का पूरा 100% प्रोडक्शन होता है, ऐसा पॉसिबल। प्रोडक्शन, रेट पर यूनिट एंड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। रेट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट लिख देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी था। सर जिस लेबर से सप्लायर से मैं अपना रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, ही इज चार्जिंग 10 रुपी पर यूनिट। लेबर बोलता है सर 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का 5 रुपीज दूंगा। सर मैंने प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स की, तो मुझे रॉ मटेरियल कितने का लेना पड़ेगा? 10,000 रुपीज का, क्योंकि मैंने बोला है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। सर तो अगर मुझे अगर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो मुझे 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, बरोबर है? यस। सो 10,000 इंटू 10,000 मिलेगा। सर अगर मैं प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स का करता हूँ तो 20,000 लगेगा। अगर मैं 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं ये बोलूँ कि सर यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वही मेरा रॉ मटेरियल भी है। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक एजम्पशन क्या लिया है? सर मैंने एजम्पशन लिया है एक यूनिट से एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल गिव्स मी 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ये मैंने एजम्पशन लिया हुआ है। दिस इज एन अजम्पशन, मैं प्लीज क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं होता है, वेस्टेज होता है। उसके बाद आएगा 30,000। सर मेरा प्रोडक्शन बिजी सीजन था, इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ऑफ सीजन आने लगा, सो 2000 हो गया, वापस 20,000, वापस 1000 हो गया, सर वापस यहाँ पे 10,000। और कोविड की वजह से बिजनेस पूरा ही बंद था, प्रोडक्शन बंद था, कॉस्ट भी 0। सेम विथ लेबर, लेबर ने बोला सर 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया, पर यूनिट में 5 रुपीज लूंगा, पर आवर का लेबर कॉस्ट पर आवर, या पर यूनिट ले लो, ठीक है।
लेबर बोला सर मैं 1 मिनट प्रोड्यूस करूंगा तो 5 रुपीज दूंगा, तो लेबर 1000 का 1000 का 5000 लेगा, 10,000, 15,000, 10,000, उसके बाद आएगा 5,000। और सर कोविड में बिजनेस बंद था, मैन्युफैक्चरिंग बंद था, जीरो। अभी सर यहाँ पे यही नोट लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, दिस नोट आई एम टॉकिंग, दिस नोट जो हमने फिक्स कॉस्ट में लिखा हुआ है ये बता रहा है। यहाँ पे भी इसका रिवर्स होगा, नोट में क्या आएगा, अमाउंट विल चेंज, अमाउंट विल चेंज per unit will remain fixed, remain fixed। अब देखो पर यूनिट फिक्स्ड है या नहीं, पर यूनिट फिक्स्ड है या नहीं, पर यूनिट फिक्स्ड है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर रॉ मटेरियल कितना था 10,000 रुपीज का है सर, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, एक यूनिट 10 रुपीज का है। 1,000 इंटू 10, 10,000, 2,000 इंटू 10, 20,000, 3,000 इंटू 10, 30,000, 2,000 इंटू 10, 20,000। लेबर का भी 5 रुपीज पर यूनिट, 5, 5, 5, 5। अब देखो पर यूनिट रिमेन सेम, रिमेन फिक्स, पर यूनिट रिमेन फिक्स, पर यूनिट रिमेन फिक्स। ठीक है सर, समझा। अभी सर इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट होगा वो, चलो देखो। इफ आई प्रेजेंट देम ग्राफिकली इट विल बी डन लाइक दिस। सर यहाँ पे y एक्सिस, हियर x एक्सिस, यहाँ पे 0, सर प्रोडक्शन 1000, प्रोडक्शन 2000, प्रोडक्शन 3000, प्रोडक्शन 4000, प्रोडक्शन 5000। सर 1 यूनिट के लिए 1 रुपीज लगता है, मतलब अगर मुझे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 1000 रुपीज का कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अभी द कॉस्ट भी लिख दो, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट लेट इट बी कॉस्ट ऑन। 1 यूनिट के लिए मुझे 1 रुपीज इंकर करना पड़ेगा। सो 1000 के लिए 1000, 2000 के लिए 2000, 3000 के लिए 3000, 4000 के लिए 4000 एंड 5000 के लिए 5000। यहाँ पे एक आएगा और जीरो रहेगा तो जीरो, सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो लाइन है वेरिएबल कॉस्ट का, इट विल स्टार्ट विद जीरो एंड मूव्स इन अ 45 डायरेक्शन, 45 डिग्री में वो वेरिएबल कॉस्ट मूव होगा, ध्यान देना है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, it will start in, it will always start with zero, always start with zero। और जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यस सर, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, हाँ इस तरह से कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इफ एनीबडी वांट टॉक्स एनीथिंग लेट, इफ एनीबडी वांट टॉक्स एनीथिंग लेट, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस, प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे। If no doubt, put a message in the chat box, no doubt। चलो, shall we move fast? No doubt। तो सर हमने वेरिएबल कॉस्ट समझा, हमने फिक्स कॉस्ट समझा। सो व्हाट अबाउट सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों प्लस करेंगे तो मुझे सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी गेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं इन माय ओन वर्ड्स, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which remain fixed, just wait, which remain fixed for particular period, for particular period, then changes and again remain fixed, then again remain fixed, that is semi variable cost। that is semi variable cost। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स होता है, उसके बाद चेंज होते रहता है, फिक्स होता है चेंज होता है, फिक्स होता है चेंज होता है। कैन यू गिव द एग्जांपल?
बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, जैसे कि टेलीफोन चार्जेस, जस्ट वेट, टेलीफोन चार्जेस सर, वी डिडंट, मतलब टेलीफोन चार्जेस नहीं समझा सर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारे के सारे क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, लेट इट बी, इतना एग्जांपल बस। अभी सर टेलीफोन में कैसा है, अगर आप लोग लैंडलाइन यूज करते होंगे तो आपके घर पे बट ऑब्वियस टेलीफोन बिल आता होगा। अब वहां पे देखो, उसमें ऐसा लिखा रहेगा, आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, बट ऐसा दिया रहेगा, फर्स्ट 100 कॉल में 50 पैसा पर कॉल, मतलब 1 मिनट का 50 पैसा। बट अगर आपने 100 से 120 कॉल, 200 कॉल्स किए, तो आपका 1 रुपीज आएगा। फिर उसके बाद 200 से लेके 300 के बाद इट इज 1.50 रुपीज आएगा। उसके बाद 300 एंड अबव जो भी है, इट विल बी 2 रुपीज पर मिनट, पर मिनट। जो भी बात समझा या नहीं समझा, ऐसा होता है या नहीं होता है? मोबाइल फोन में भी होता है सर। डे में कॉलिंग चार्जेस होता है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग, पूरा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग कॉलिंग चार्जेस होता है। बट आपको ये भी पता होगा, आई गेस, अर्ली मॉर्निंग, दैट इज फ्रॉम 12 नून से लेकर, नॉट 12 AM से लेकर, या मैं से बोलूँ 12:01 AM से लेकर मॉर्निंग 6 AM तक कॉलिंग फ्री होता है। कॉलिंग इज टोटली फ्री, मतलब पूरे डे चार्ज, डे बेसिस पे चार्जेस होता है, और अर्ली मॉर्निंग के चार्जेस नहीं होते हैं। अरे यस और नो, होता है या नहीं होता है? रिप्लाई फास्ट, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो कैसे होगा सर? इवन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में भी ऐसे होता है, फर्स्ट 100 यूनिट्स में आपका कॉस्ट रहेगा 4 रुपीज, नेक्स्ट 100 यूनिट में कॉस्ट रहेगा 4.5 रुपीज, नेक्स्ट 100 यूनिट्स में रहेगा 5 रुपीज, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल इज वेरी कॉमन। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट कंजम्पशन का चार्जेस क्या होता है, वहां पे लिखा रहता है। इसका मतलब सर, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो फिक्स होता है, फिर चेंज होता है, फिर क्या होता है, चेंज होता है, फिर फिक्स होता है, फिर चेंज होता है, फिर फिक्स होता है, फिर चेंज होता है, फिर फिक्स होता है। दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये है आउटपुट और प्रोडक्शन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जीरो, दिस इज कॉस्ट। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग, लेट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो चार्जेस, वो कॉस्ट होता है जिसमें एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड तक फिक्स होता है। जैसे आप लोग ऑटो में जाते हो, मैं ट्रांसपोर्टेशन ले रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर लाइक 1 किलोमीटर द रेट इज फिक्स्ड। मतलब अगर आप, ऑटो में एक मीटर होता है बेटा, ध्यान देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अप टू, अगर आप 1 किलोमीटर तक जाते हो, तो आपका जो ऑटो का चार्जेस होगा दैट इज 21 रुपीज। तो आप यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अब यहाँ पे उतरो, या यहाँ पे उतरो, यहाँ पे उतरो, यहाँ पे उतरो, यू विल बी पेइंग 21 रुपीज, 21 रुपीज, 21 रुपीज, 20। बट उसके आगे का जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है मीटर के ऊपर। यस और, होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। किसी को कुछ पूछना है पूछो, अदरवाइज हियर वी हैव डन विद कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। सिर्फ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखो, यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट नीड टू बी सेपरेटेड। इसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन, आप लोग को आगे होगा भी होगा, नॉट मे बी इन दिस सेमेस्टर, बट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर मे बी, जब भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट आएगा, लिसन वेरी केयरफुली, आपको हमेशा बताया जाएगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग फिक्स कॉस्ट को अलग करेंगे, फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट अलग करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट भी अलग करेंगे। सो हियर वी हैव डन विद which cost, here we have done with, that is semi
वेरिएबल कॉस्ट। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछो, नहीं पूछना है आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉस्ट। चलो जल्दी फास्ट। ठीक है, सो ओनली वन स्टूडेंट से नो डाउट, इसका मतलब बाकी सारे बच्चों को डाउट है। सो प्लीज नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मैसेज कोई नहीं करेगा, प्लीज डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा। जो डायरेक्ट मैसेज करेगा मैं उसको रिस्पॉन्स में काउंट ही नहीं करूँ। सारे बच्चे डायरेक्ट मैसेज कर, विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यस सर। नाउ सर फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बिहेवियर कंप्लीट किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दिस टेबल आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं मान के चलूंगा कि ये टेबल आप लोग ने बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है, लेटर ऑन जब ये लेक्चर शेयर होगा तो प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको ड्रॉ करके रखना। ठीक है। नाउ सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको टेबल फॉर्म में इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, on the basis of time. Thus, this will be the last cost, last uh, classification we'll be discussing, और इसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। सो फर्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक वर्ड हिडन है, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री, सो इट ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट। करंट कॉस्ट, present, present, and this is predetermined cost, future. Future, predetermined cost, future. So now let us start with historical cost का मतलब क्या होता है? What do you mean by historical cost? Sir, what is historical cost? चलो स्टार्ट करें। यस सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट as certain after being incurred. मुझे बताओ सर, दिस ईयर इज 2021, आज मेरे मशीन की वैल्यू है 40,000 रुपीज। सर ये मशीन ना मैंने 2015 में परचेज की थी। कितने में परचेज की थी? सर मैंने 1 लाख रुपीज में परचेज किया था। सो दिस 1 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस 1 लाख इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो उसने क्लियरली बोला है that these historical costs are those costs as certain after being incurred. सर मैं 2021 में हूँ, ये कॉस्ट ऑलरेडी incurred हो चुका है। बट प्लीज ध्यान दो, मैंने मशीन का एग्जांपल दिया है, ध्यान देना है। मशीन का एग्जांपल, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। सर आज मेरे मशीन का वैल्यू 40,000 है, आज मेरे मशीन का वैल्यू 40,000 है। टेल मी आफ्टर to 2015 what was my cost of machine, what was the cost of my machine, what was the cost of my machine? ठीक है सर। तो सर हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फाइन इंकर्ड होने के बाद की जाती, फाइन इंकर्ड होने के बाद की जाती। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ेंगे। दे रिलेटेड, दे रिलेट टू दी हैपनिंग, they relate to the happening just wait, happenings which have already taken place, taken place. Sir example,
एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सर मैंने एसेट परचेज किया था 5 years बैक, कितने में परचेज किया था? सर 1 लाख रुपीज में परचेज किया था, दैट इज हिस्टोरिक। ठीक है, या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पक्का? यस। इन सिंपल वर्ड अगर मैं इसको नोट में लिखूं, ये हमेशा पास्ट की बात करता है, इसकी बात करता है पास्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट। ठीक है सर, तो सर हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम लोग एसर्टन करते हैं आफ्टर इंकर करने के बाद। ठीक है, now what is current cost? Current cost are those costs, current costs are those costs, are those costs relating to, relating to the present period, relating to the present period, relating to the present period, relating to the present period। ठीक है, बराबर है? यस। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग करंट मंथ, ड्यूरिंग करंट मंथ, मंथ बोलो या वीक बोलो। सो करंट मंथ में मैंने कितना कॉस्ट इंकर किया, करंट वीक में मैंने कितना कॉस्ट इंकर किया। दिस विल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रेजेंट, ऑलवेज टॉक अबाउट प्रेजेंट, ऑलवेज टॉक अबाउट प्रेजेंट। इज इट ओके? ध्यान दो। ऑलवेज टॉक अबाउट प्रेजेंट। एंड व्हाट इज प्री डिटरमाइन कॉस्ट? सर इंकर किया भी नहीं, पहले से फाइंड कर रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर बनाना है, सर उसको मटेरियल 5 रुपीज का लगेगा, प्री एस्टिमेट करना, प्री एस्टिमेट करना। लेबर वाला 5 रुपीज लेगा, लेबर 10 रुपीज लेगा, लिया नहीं है, लेगा। सर ओवरहेड मुझे 5 रुपीज लगेगा, मेरा कॉस्ट 20 रुपीज हो सकता है, मेरा प्रॉफिट 5 रुपीज है, और मेरी सेलिंग प्राइस में 25। बाद में पता चला मटेरियल एक्चुअली लगा 6 का, लेबर ने लिया 12 रुपीज, ओवरहेड लगा 3 रुपीज, सबको प्लस करो 21 रुपीज, प्रॉफिट आया 4 रुपीज, सेलिंग प्राइस 25। सो प्री डिटरमाइन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इंकर्ड करने से पहले ही डिटरमाइन किया जाता है। सो इंकर्ड, प्री डिटरमाइन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, आर दोज कॉस्ट which are computed, which are computed in advance, which are computed in advance। Example, example, budgeted, budget cost, standard cost, standard cost, like quotation होता है, quotation, quotations, etc. So these all comes under predetermined cost, and it always talks about future, always talks about future, always talks about future, always talks about future। Yes, anybody want to ask anything? If anybody want to ask anything, let me know. If no doubt, तो mention करो, no doubt, no doubt, no doubt।
ठीक है देन। सो एक काम करेंगे हम लोग, आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल मेक श्योर दैट ये हम लोग खत्म करेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ये वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, सो बाय फॉर द डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर दैट प्लीज डू रिवाइज दिस टू कॉस्ट जो व्हाट वी हैव डन टुडे। बाय फॉर द डे।